myself Kapil Dutamkar, founder and CEO of event.org. So here we are presenting our 8th event with the man Rupinder Singh, who is the founder or CEO of Biohouse, angel investors, public speaker and all. The great great things in his life is that the way he started his life and now the way he's doing. So firstly, very welcome of Rupinder sir. Thanks a lot for joining this session. Yes sir, we will start from you. Hi everyone, thanks a lot for joining the session. And basically this is our 8th event. Hope everybody has started, like some of the guy he is present who is joined the event from our first event, and it's our honor that Rupinder sir came in our 8th event. Thanks a lot sir for coming in the event. And event on for that, like the fund get to know all about the fundamental of a startup. Like sir is the founder of Biohouse and the great knowledge in the startup field, also the investor in some of the startup. And sir, thanks a lot sir. Like firstly, you will share your journey, like how you started, how you get it, what makes you bring that you come in entrepreneurship. And yeah, we will start the session like so. Yes sir, start from your side. Yeah, sure. So Kapil, thank you very much. First of all, I really appreciate that you have arranged this. I will be able to connect with so many participants today, and I will be most of the time a combination of English and Hindi, both dono chalenge mere. So but feel free, feel relaxed. So you can ask me any questions which you feel appropriate. So I am basically gold medalist biotechnologist from Punjab University, Chandigarh. I was also entrance test topper for biotechnology across India. So then I topped university both years. Then I worked with several multinationals. I was heading multinationals like Carey. So I was director for Asia at the age of 39. And prior to that, I was working with Becton Dickinson. That's another $8 billion multinational. So uska I was India head for BD Biosciences business. So मैं India का head था. But मुझे हमेशा अपना business start करना था. Somehow I had that intention that I should start my business one day, so that can give jobs to a lot of people. I can earn for myself. I can also give jobs to others. मैं दूसरों को भी मैं jobs दे पाऊंगा. और उससे भी बड़ा I think कहीं ना कहीं मेरा जज्बा था कि मैं शायद देश के लिए भी कुछ कर पाऊंगा. तो मुझे बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में अपने देश के लिए भी कुछ करने का मौका मिलेगा अगर मैं स्टार्टअप करता हूँ या एंटरप्रेन्योर बनता हूँ या बिजनेस स्टार्ट करता हूँ. सो दैट वाज द रीजन. जब मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला तभी से ही आई वाज वेरी क्लियर दैट मुझे अपना बिजनेस चालू करना है. Now you must have seen that everyone is talking about startups and business and blah blah. लेकिन हमारे जमाने में वो बहुत टफ होता था, particularly जब जैसे I was in a very good cushy multinational job. I was going around the globe. कभी US में होता था, कभी यूरोप में होता था, कभी एशिया में घूमता था, 5-star होटल्स में रहना, फ्लाइट्स इधर से उधर. सो बहुत सारे लोगों को वो जॉब अच्छी लगती होगी, या मुझे भी शुरू में बड़ी अच्छी लगती थी. बट देन आई रियलाइज दैट ये शायद ये सब कुछ मेरा नहीं है यार. ये तो कंपनी का है, जब तक मैं कंपनी में हूँ तब तक का है. सो आई थॉट आई विल रियलाइज माय ड्रीम. I will start my own business, and this is where it began. So I started my own company in 2009. So उन दिनों में we never had Shark Tanks or equity or private equity or venture capital, or we did not have those kind of things available for us. So what we had was bootstrapping, जिसको बोलते हैं, अपनी जेब से पैसे लगाना बिजनेस में, या फिर बैंक से मनी रेज करना, या थोड़ा बहुत फ्रेंड्स एंड फैमिली से यू कैन डू इट. सो वी नेवर हैड इक्विटी और वेंचर कैपिटल और pitch decks even. So there was no pitch deck. You can make a capability presentation for the company and you can give presentation to someone, but there was nothing like word pitch deck. So this pitch deck has come very recently. Aryan has rahe, so he understands
So you know we had a very different time. बट मेरे को ना वो शुरू से शौक था कि यार मैं अपना बिजनेस करूंगा. फिर मेरा शौक था कि मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्टर लेके आऊंगा. तो मैं शुरू से लगा हुआ था इन्वेस्टरों को प्रेजेंटेशन देने, उनको कन्विंस करने के लिए. सो आई वाज डूइंग इट फ्रॉम डे वन. एंड देन I got investors in my company. I got angel investors. Then I was able to get people who are from very big funding houses like Morgan Stanley and all. So they also came in. They became investors in my company. So मेरा तो ये आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि you should dream what you want to do and dreams do come true. ये है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. इट्स नॉट लाइक आपने ड्रीम ले रहे हो, सारा दिन ड्रीम ही ले रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, सो देन इट विल नॉट हैपन. बट जब आप सपना लेते हो और फिर उस सपने के बारे में सोचते हो तो आप अपने आप उसको एग्जीक्यूट करने लगते हो. सबसे पहला तो प्रॉमिस आप अपने आप को करते हो. जब आप कोई भी बात बोलते हो तो सबसे पहले तो आप खुद सुनते हो. सिमिलरली जब आप सोचते हो तो सबसे पहले आप अपना दिमाग में रिकॉर्ड करते हो उस चीज को. सो सपने लेने चाहिए. सो दिस इज माय फर्स्ट एडवाइस टू एवरीवन. लेकिन सपने लेने के बाद सपनों को रियलाइज करने के लिए जो एग्जीक्यूशन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि आपके जमाने में इक्विटी नहीं होता तो कोई नहीं जानता था, और शार्क टैंक आने के बाद हर बच्चा बात कर रहा है कि मैं आइडिया लेके आ रहा हूँ, पिच कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर के पास जा रहा हूँ, मेरे को पैसा दो, मैं काम करूंगा. और लाइक द वे वो सोच रहा है कि IIT IIM नहीं भी हुआ तो मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ. बट ये थोड़ा सा गलत इन्फॉर्म है. आपको अपना एफर्ट मारना चाहिए. लाइक वी हैव सीन लाइक इग्नूर सिंह, लाइक ही इज एन IIT बॉम्बे, बट इट डजंट मीन उस बंदे ने पूरा एफर्ट डाला वो IIT बॉम्बे में जाने के लिए, तब वो IIT बॉम्बे में है. एंड द वे यू मेंशन ऑल द थिंग्स लाइक इट्स टोटली ट्रेमेंडस. सो मैं पूछना चाहता हूँ सर कि अगर एक बच्चा है लाइक यंग है, आई हैव अ स्टार्टअप आइडिया, and like we have seen startup idea is not everything, execution is everything. So what is your thought on that? बहुत अच्छा क्वेश्चन कपिल. एंड ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि हम सब सोचते हैं कि हम स्टार्टअप चालू करें. बट सबसे पहले हमें ये देखना है कि what is the problem which you are going to solve. अब हो क्या रहा है ना कि लोग एक दूसरे को देख के वो भेड़चाल में बहुत सारे लोग स्टार्टअप में जाना चाहते हैं. बट दैट इज नॉट द राइट वे. सबसे पहले आप देखो कि क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करने वाले हो. वो प्रॉब्लम से कितने लोगों को फायदा होगा और उस फायदे में आपका फायदा होगा. समझ रहे हो? तो बहुत सारे लोग स्टार्टअप एंथुसियास्ट घूम रहे हैं जो कहते हैं कि हमें बिजनेस चालू करना, क्या चालू करना नहीं पता, मार्केट को किस चीज की जरूरत है नहीं पता. अच्छा, सबसे उन्होंने पहले अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कभी नहीं करी है, कभी किसी को बेचा नहीं है. अगर आपने कभी किसी को कुछ बेचा नहीं, आपने किसी को कुछ कन्विंस करने की कोशिश नहीं की या कन्विंस नहीं कर पाए, तो भूल जाओ ना, अब अपने पिछले लोगों को कैसे इंप्रेस कर पाओ. Yes, sure. अगर आप एक इंटरव्यू को ढंग से फेस नहीं करते हो, देखो लेना नहीं लेना अगले वाले की बात है, वहां भी आप अपने आप को बेच रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को बेच रहे हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेच रहे हो. अगर आप वो बेचने की पावर अगर रखते ही नहीं हो तो भूल जाओ कि आप कुछ कर सकते हो. मैं ये कहता हूँ कि सारी इवेंट जो होती है ना वो सक्सेसफुल नहीं होती. इवन बिजनेस में भी आपका एक आइडिया होगा, हो सकता है वो सक्सेसफुल ना हो, दूसरा हो. बट सबसे पहले यू शुड हैव दैट नैक ऑफ कन्विंसिंग पीपल, दैट नैक ऑफ कम्युनिकेटिंग. अब जैसे अब बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे रिचर्ड ब्रांसन है, ही इज अ बिलियनेयर, वर्जिन अटलांटिक और वर्जिन गैलेक्टिक के, वर्जिन म्यूजिक के फाउंडर. वो कह रहे कि दो और दो चार नहीं होता. कहते 2 और 2 4 नहीं होता जब तक वो मेरे हाथों में नहीं होता ना. मैं कैसे मान लूं कि 2 और 2 4 होता है. और वो कह रहे कि तो मैथ पढ़ने का तभी फायदा है अगर आपको 2 और 2 4 करना आता है. एंड देन ही सेज कि 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 5 होना चाहिए, ताकि अगर मैं कोई चीज 2 रुपए की खरीद रहा हूं
उसके ऊपर 2 रुपए के एफर्ट लगा रहा हूँ, तो फिर 1 रुपया प्रॉफिट भी करूंगा, तो मेरा तो 2 और 2 5 है। यू अंडरस्टैंड? एंड दैट इज वैल्यू क्रिएशन। अगर आप आज ये सेशन चला रहे हो या कुछ आज ये कर रहे हो, और अगर उसमें आपने कुछ वैल्यू ऐड नहीं किया, अगर सब लोगों के लिए यहाँ पे, या मैंने वैल्यू ऐड नहीं किया, तो इसका कोई फायदा नहीं। और अगर आपने वैल्यू ऐड कर दिया, आप सक्सेसफुल हो गए, आप आगे बढ़ोगे, आपको मोर, यू विल गेट मोर रेफरेंसेस, यू विल गेट मोर सपोर्ट फॉर योर एफर्ट्स। तो वैल्यू क्रिएशन सीखो। तो जैसे आपने बोला ना कि क्या जरूरी है, तो पहली बात जरूरी है कि आपको वैल्यू क्रिएशन करनी आनी चाहिए। नहीं करनी आती, अभी से सीखना शुरू कर दो, क्योंकि वहां भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगेगी। दूसरा, आपको प्रॉब्लम को बहुत क्लियरली सोचना पड़ेगा कि किस चीज की प्रॉब्लम है और आप उसको कैसे सॉल्व करोगे या कैसे बेटर सॉल्व करोगे। सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, देन थर्ड, व्हाट इज योर सोल्यूशन, आप कैसे सॉल्व करोगे। सो जब सोल्यूशन आपको पता लग गया, अब आप आओगे चौथे पॉइंट पे। अब आप रिसोर्सेस, क्या रिसोर्सेस चाहिए होंगे, आपको कितने पैसे चाहिए, आपको कितने एम्प्लॉइज चाहिए होंगे, आपकी ऐप क्या होगी, आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा, तो वो सारे रिसोर्सेज में आएंगे। और अगर आपको वो रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं, तो फिर आपका क्या प्रॉफिट होगा, आपका कैश फ्लो क्या होगा, ये चीजें बहुत जरूरी है। Yeah, sir. Like the way you mention is things like I'm also mentioned कि यार लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं. You said totally remember. We have Vishal. Over to you, Vishal. Like Vishal is a great guy, and we have the 4th team member, and like event.org is just like a startup to conduct the event. Like I talked to you the way why we are conducting the event to spread the awareness among the students. Like why you should do startup. Like आप जॉब करके भी अगर जॉब कर रहे हो ना, तो उसको अच्छे लेवल तक ले जाओ। ये सोचो कि मैं मैनेजर बनूंगा। इट डजंट मीन दैट कि इफ यू आर नॉट डूइंग ए स्टार्टअप, इट डजंट मीन कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। और आज की डेट में 99.99% स्टार्टअप आर फेलिंग। And like sir, I am talked to Nitin Kamath in a like Twitter space. He mentioned that before 5 years, the startup words was like too good, but in the upcoming years, it will be like भेड़ चाल बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो you will struggle on that. Yes, over to you, Vishal. Vishal will ask some of the great question from you. Yeah, sir. Yeah, Vishal. Yeah, over to you. Yeah, tell me. Thanks, Kapil. Thank you so much, sir. It's been an honor talking to you. So my question is that you have done so much things in your life, like you have done job on that high level, even you were gold medalist in your college. So what's your greatest learning in your life, and what makes you special from others that you are so successful, sir? So that's what I want to know. तो विशाल, पहली बात तो कि मैं स्पेशल नहीं हूँ। सबसे पहली तो रियलाइजेशन, you are special. नहीं, आपको लगता है, एंड आई एम श्योर आप जब मेरे लेवल पे आओगे, मेहनत करोगे, तो कुछ और लोगों को आप भी बहुत स्पेशल लगोगे, मेरे से ज्यादा। दैट इज व्हाट आई विश। लर्निंग इज ए 2-way प्रोसेस, सो वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर। आज मैं आपसे कुछ लर्न करके जाऊंगा, कुछ आप मेरे से लर्न करके जाएंगे। अगर एक चीज जो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा हेल्प करी है, दैट वाज नेवर गिव अप अप्रोच। और ये मैंने किसी और मेरे वीडियो में भी बोला था कि मेरी मदर ने मुझे बोला, शी इज अ वेरी सक्सेसफुल लेडी। मेरे फादर पेरेंट्स डॉक्टर हैं, मदर इज ए नर्स, नर्सिंग होम चलाते हैं। सो शी सेड कि प्रॉब्लम लाइफ में कुछ भी आ जाए, चट्टान भी आ जाए, तो चट्टान से टकरा जाना, मर्द का बच्चा बन के वापस मत आना, डोंट गिव अप। एंड उनका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये लड़कों के लिए, मतलब व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल मी इज, बच्चों एज ए बच्चों, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कि पहले तो गिव अप नहीं करो। अगर आपने कोई मंजिल चूज करी है ना, तो आपको रास्ते में बहुत कठिनाइयां आएंगी। मैंने अपने YouTube पे अपनी लाइफ की एक स्टोरी शेयर करी है, वो काफी अच्छी चली, काफी हजारों में चली गई थी, जबकि मेरे अभी सब्सक्राइबर बेस उतना बड़ा नहीं है। बट उसमें मैंने यही बताया कि आई वेंट थ्रू हेल लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। डॉक्टर का बेटा था, डॉक्टर बनना था, नहीं बना, लोगों ने राइट ऑफ कर दिया। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को कोई जानता नहीं था, लोग सोचते थे कि यार अच्छा खासा इंटेलिजेंट डॉक्टर का लड़का था, कहाँ किस बायोटेक्नोलॉजी किस फील्ड में चला गया। सो
but one approach which has helped me all throughout is never give up. दूसरी चीज मैं बोलूंगा विशाल, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो आज कपिल ने आज शुरू किया है ना, अगर ये 10 साल बाद शुरू करेंगे ना, तो इस चीज के लिए आज 10 साल बाद इस स्टेज से शुरू कर रहे होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी शुरू कर दिया। ऐसे ही आपने जो भी कोई चीज शुरू करी है, चाहे वो वेल्थ क्रिएशन हो, चाहे वो इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज हो, चाहे वो पढ़ाई हो, जो स्किल्स होते हैं, ये दिस इज ऑल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं कमरा बंद करके अपनी रिहर्सल करता होता था इंग्लिश में बोलने की, बिकॉज आई वाज कमिंग फ्रॉम ए वेरी स्मॉल टाउन, पंजाबी, यू नो, तो कमरा बंद करके मैं बोलता था। आज भी लोग मुझे बोलते हैं कि वीडियो किसके लिए बनाते हो यार, अभी तो आपके व्यूज कम है। तो मेरा जवाब ये है कि मैं एक्चुअली तो अपने लिए बनाता हूँ, क्योंकि मैं उनसे पहले तो खुद ही मोटिवेट होता हूँ, मैं उसको फिर मेरे दिमाग में आता है, तो जब मैं डाउन होता हूँ अपना वीडियो देख लेता हूँ कि यार रुपिंदर सिंह उस दिन तो आप ये बोल रहे थे। सो यू नो, सो नेवर गिव अप, स्टार्ट अर्ली, क्रिएट वैल्यू एंड एग्जीक्यूशन। So those are the few points that I think will help. It helped me, it will help you as well. Thank you so much, sir. It's been a great. So my second question is, I want to know that what should have specific traits that an entrepreneur should have, like to succeed. You are an entrepreneur, then what do you think that especially the young entrepreneurs, a trait should have in his or her personality? देखो, कुछ ट्रेड तो मैंने बता दिए, नेवर गिव अप वाला ट्रेड, क्योंकि जैसे बिजनेस शुरू किया लोग बोलेंगे, तो एक वो। दूसरा, वैल्यू क्रिएशन आनी चाहिए, आपको शार्प होना पड़ेगा कि आपकी बिजनेस मॉडल है क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं जो करने जा रहा हूं, बिजनेस में, बिजनेस हैज बीन ऑल अबाउट क्रिएटिंग प्रॉफिट्स, क्रिएटिंग वैल्यू। अगर आपको प्रॉफिट क्रिएट नहीं करना आता ना, अगर आपको वैल्यू क्रिएट नहीं करनी आती, तो सीखो। जैसे बिजनेस चालू किया तो मेरे को मेरे इन्वेस्टर्स जो पहली बार, वो बोले कि यार अपना ऐसा करो, कैश फ्लो प्रोजेक्शन बना के लाओ। अब मैं विशाल आपसे क्वेश्चन करता हूँ, गुड दैट यू आस्क क्वेश्चन, कि मान लीजिए आपने 2 रुपए की कॉस्ट लगा के 4 रुपए का प्रोडक्ट मेरे को बेचा, कितना प्रॉफिट है आपका उसमें? ऑलमोस्ट डबल, बट कस्टमर एक्विजिशन और भी चीजें, काफी सर्विसेज उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। गुड पॉइंट, बट कितने रुपए प्रॉफिट है मेरा इसमें? 2 रुपए ऑफ कोर्स, और 4 रुपए में मैंने कपिल को बेच दिया, तो मेरा कितना हुआ? मोटा मोटा, बाकी खर्चे आएंगे बाद में, अंडरस्टैंड? यस सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, आपकी वॉइस लैग हो गई। मैंने 2 रुपए लगा के, यस सर, 2 रुपए का प्रोडक्ट आपसे खरीदा और मैंने 4 रुपए का कपिल को बेच दिया, मेरा प्रॉफिट कितना है? 2 रुपए का ऑफ कोर्स। 2 रुपए, करेक्ट। लेकिन मैंने वो 4 रुपए मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा। इज इट ए गुड बिजनेस? नो सर। क्यों? बिकॉज किसी भी चीज का टाइम होता है, ऑफ कोर्स 4 रुपए की वैल्यू उस टाइम पे हो सकता है उतनी ना हो जितना अभी हो। वो बात है, वो एक बात है, वो बिल्कुल सही बात है, आप जो बातें कर रहे हो बहुत रेलेवेंट कर रहे हो, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि आपकी जेब में 2 रुपए थे, ठीक है? yes, sir. उस 2 रुपए को लगा के आपने 4 रुपए में सामान बेच दिया, बुक्स में आपका 2 रुपए प्रॉफिट आ गया, लेकिन मैंने अभी आपको 4 रुपए नहीं दिए। अब आपका कैश फ्लो क्या है बताओ, आपकी जेब में अब कितने पैसे हैं? 2 रुपए देने के बाद मान लीजिए आपकी जेब में 2 रुपए थे, वो तो आपने लगा दिए, अब आपकी जेब में क्या है, कितने पैसे हैं? 0। एक भी रुपए नहीं है सर। तो आपको बुक्स में तो प्रॉफिट 2 रुपए है, आपको 2 रुपए बुक्स में प्रॉफिट आ गया है, लेकिन जेब में आपके पास जो 2 रुपए थे ना, वो भी नहीं है अभी, समझ रहे हो? तो आप 2 रुपए नीचे चले गए हो। टिल द टाइम आई पे यू 4 रुपीज। yes, sir. अब अगर मैं आपको 4 रुपए अभी के अभी देता हूं, तो अब आपकी जेब में कितने होंगे? 4 रुपए होगा। कैश फ्लो कितना होगा? 2 रुपए पॉजिटिव। यस सर। सो प्रॉफिट, एक तो प्रॉफिट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी स्टार्टअप कर रहा है।
दूसरा उसको कैश फ्लो समझना बहुत जरूरी है, और यहीं पे लोग उल्लू बना जाते हैं। अब कपिल बोलेगा कि यार तू ऐसा कर विशाल, तू 20 रुपए लगा, 10 पीस मेरे लिए बना, 40 रुपए में मुझे दे दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। आपने 20 रुपए आर्यन से उठाए, आर्यन से आपने 20 रुपए का कर्जा ले लिया और आपने इनको सामान बना के दे दिया। अब एक तो आप 20 रुपए कर्जे में हो और ये बंदा आगे पैसे नहीं दे रहा आपको, सो योर कैश फ्लो इज नेगेटिव। ये चीजें ना कोई नहीं समझाता है, सारे स्टार्टअप ये वो सब बट जब हम बिजनेस करने जाते हैं ना तो हमें हर कोई उल्लू बना जाता है। हमसे ज्यादा तेज सब्जी वाला होता है, हमसे ज्यादा तेज दुकान वाला होता है। तो दुकान वाला क्या बोलता है कि सर नगद 4 रुपए मत दो, आप 3.5 रुपए दे दो, लेकिन अभी दे दो। तो क्या होगा, अगर आपकी जेब में 3.5 रुपए होंगे, अब आप 3.5 रुपए से फिर वही साइकिल आराम से रिपीट कर सकते हो। लेकिन अगर इन्होंने आपको पैसे नहीं दिए होते तो आप तो 3 महीने तक बैठे थे फ्री, अब कुछ नहीं कर सकते, या उधार लेने जाओगे किसी से। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कैश फ्लो, प्रॉफिट, कैश फ्लो, रेवेन्यू, ये सारी चीजें समझो अगर बिजनेस कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के बात ये कि इसका जर्नी या ऐसे प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, सीखते सीखते ही आएगा। आपको ये चीजें समझनी है अगर बिजनेस में आना है। नहीं तो क्या होगा ना, बहुत सारे लोग आते हैं उनको ये चीजें नहीं समझ होती, तो वो बिजनेस में फेल होते हैं शुरू के सालों में बुरी तरीके से। और जब आप बहुत बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं ना, वो आपसे यही पूछते हैं, वो आपको यही चेक करते हैं कि ये कमर्शियली तेज है बंदा, या तो बंदा तेज हो या उसकी टीम में कोई तेज हो। जैसे कोई बंदा R&D में बहुत अच्छा है तो जो को फाउंडर है वो कमर्शियल में बहुत अच्छा हो। कोई बंदा सेल्स में अच्छा है, मार्केटिंग में अच्छा है, दूसरा बंदा नेटवर्किंग में बहुत अच्छा हो। सो इवन को फाउंडर्स आपके दे शुड ब्रिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, वैसे लोगों की टीम बननी चाहिए। हाउ टू फाइंड योर राइट को फाउंडर, आई मीन एक टीम कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्पेशली आइडिएशन लेवल पे। तो उस चीज को कैसे बेटर करे, लाइक आपका को फाउंडर आपके लिए बेस्ट हो और कंपनी के लिए भी बेस्ट सुटेड हो। तो को फाउंडर के 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो उसके स्किल कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होने चाहिए। पता लोगा एक कमर्शियली थोड़ा झल्ला है, बेवकूफ है, और दूसरा भी कमर्शियली झल्ला है। दोनों R&D में बहुत स्ट्रांग है, पर दोनों कमर्शियली झल्ले हैं, तो उनको तो कोई भी बना जाएगा। तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स चाहिए होते हैं, कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स, कि अगर आप X हो और आप Y में कमजोर हो तो आपका प्रेफरेबली को फाउंडर जो हो वो Y में आपको कॉम्प्लीमेंट करे। सो टीम ऐसी बनेगी जिसके सारे ट्रेड हो, दैट इज 1। सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए अच्छा हो, क्योंकि होगा क्या ना, जब दोस्ती होती है, आपने देखा हॉस्टल में हम रहने जाते हैं, पहले 15 दिन एक से बहुत दोस्ती हो रही होती है, वो दूसरे 15 दिन बाद ही टूट जाती है, फिर दूसरे के साथ दोस्ती चल रही होती है, वो उससे लड़ाइयां हो जाती है, उसकी चुगली कर देता है, अब आप सोचो जब आप बिजनेस में जाओगे तो यू विल हैव ऑल दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। So he should be able to stand with you through constructive criticism and everything, but he should be able to stand with you. तो उसको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आएंगी और हम दोनों फिर भी इकट्ठे रहना है। तो को फाउंडर अगर आपस में लड़ देते, आधे बिजनेस तो वैसे खराब हो जाते, तो को फाउंडर की अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो जाती है। तो पहले तो उनको मन में लाना पड़ेगा कि हमें लंबी इनिंग खेलनी है, तो we have to be open for the criticism. And third, he should share your vision. आप बोलोगे ताजमहल बनाना है, दूसरा बोलेगा कैसीनो बनाऊंगा मैं, तो आपके रिलेशन सब बहुत बढ़िया है बट आपका विजन ही अलग है। जैसे मेरे एक स्टार्टअप में हुआ था, मैंने बोला मुझे पैन इंडिया जाना है, तो मेरा को फाउंडर था, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम, आज भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कह रहा मुझे पैन इंडिया नहीं जाना, मुझे दिल्ली NCR में अपना कंसंट्रेट करके और ज्यादा प्रोडक्ट्स दिल्ली NCR में ही डालनी। मैंने बोला कि यार मेरे को इन्वेस्टर्स चाहिए कंपनी में। वो कह रहा नहीं यार हमें इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए, हम अपने पास रखें कंपनी, ताकि कंपनी का जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो हमारे पास रहे, ना कि शेयर होल्डर में बांटा जाए। सो यू शुड शेयर द विजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 3 ट्रेड तो मैं बोलूंगा, कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स, ready for criticism and constructive fight, and third, you should share the vision. Thank you so much for the insights. Most
I would like to have any question from the audience. If you have any question, then please ask. Sir is a treasure of knowledge. So नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Any, of course, sir. Anyone want to add a question or should I continue? आप करते, what are you doing? I'm a second year computer science engineer student from an Greater Noida NIT. Very good. Wow. Sir, so I'm currently working on my own fintech startup. It's on ideation level, but I'm figuring out everything. Let me know ideation से बाहर निकालने के लिए जल्दी कैसे जाना है. To let me know I can. बिल्कुल सर, पूरा कोशिश जारी है सर. अच्छा सर, मैं आपका LinkedIn प्रोफाइल विजिट कर रहा था and I found a post where you talked about the personal branding. Like आपने बोला था कि 54% कंपनी का जो मतलब रेपुटेशन या वैल्यू होता है वो इसको सीईओ के पर्सनल ब्रांड पे डिपेंड करता है. तो सर आप क्या सोचते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब नया स्टार्टअप ओपन हो रहा है, तो उसके लिए क्या पर्सनल ब्रांडिंग उतनी जरूरी है जितना कि एक एस्टैब्लिश्ड पर्सनल ब्रांडिंग मतलब एस्टैब्लिश्ड कंपनी के लिए है? बहुत जरूरी है विशाल, मतलब मेरा ये मानना है और ये सब लोग इस चीज को जानते हैं और इसीलिए सीईओज को इतना इतना पैसा देते हैं लोग. You know, it's all about your image. It's all about your personal branding. अब जब विशाल है, अगर विशाल ने एक अपनी इमेज रखी है तो विशाल के साथ लोग खड़ा होना चाहेंगे. लेकिन विशाल ने अगर पास्ट में उनको धोखा दिया है तो लोगों को वो भी याद रहेगा. समझ रहे हो? तो ऐसे ही विशाल अगर पास्ट में कहीं जहां प्रॉब्लम आई वहां धूम दबा के भाग गए तो वो भी लोगों को दिमाग में रहेगा कि यार ये बंदा धूम दबा के भागता है, अगर मैं इसको इसकी फंडिंग दे दूं इसका क्या पता है ये 4 महीने बाद फिर बंद कर देगा. So CEO is someone who is flag bearer, you know, सबसे आगे है. It's like a captain. कैप्टन अगर दिल हार दे तो मैच तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि मैच में तो लड़ना है ना, ऐसे ही जंग में लड़ना है, ऐसे ही बिजनेस में आगे बढ़ना है. तो जो आगे बढ़ने वाला ही अगर वीक हो या उसकी ब्रांडिंग ना हो, उसकी इमेज ना हो, उसके ऊपर लोग पैसा लगाते हैं. अब कल एक स्टार्टअप के लिए हम लोग गए हुए थे, उसकी प्रोडक्ट इनोवेशन सब बेस्ट थी, लेकिन इन्वेस्टर्स ने साफ मना कर दिया कि इस फाउंडर पे हम पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसकी बातें पे भरोसा नहीं हो रहा, ये हवा में चल रहा है पूरा, इसका डिसीजन मेकिंग बड़ी फ्लिकरिंग है, कभी वैल्यूएशन 150 करोड़ की बोल रहा है, कभी 70 करोड़ की बोल रहा है और अभी 20 करोड़ पे भी लेने को पैसे रेडी हो रहा है. तो इट्स ऑल अबाउट वो इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है. कंपनियां इमेज से भी बनती हैं. कई बार आपको बहुत डिफिकल्ट टाइम आता है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, स्ट्रॉन्ग इमेज है और लोगों को पता है कि ये सोल्यूशन निकाल लेगा, ये हमारे साथ खड़ा है, so he can carry forward in tough times. अच्छे टाइम में तो सब अच्छा करते हैं ना, देखा तो तब जाता है. How do you do in tough time? सर आप भी इन्वेस्टर हो, तो what do you see in an entrepreneur to invest? Like आप क्या देख के इन्वेस्ट करते हो किसी भी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो? यार मैं तो पहले जोश देखता हूँ, सबसे पैशन, जोश, वो सबसे पहले देखता हूँ मैं. अगर जोश ही नहीं है, बंदा वैसे ही थका हुआ है, तो उसको आप पैसे लगा दिए, वो बंदा थक के सो गया, थोड़े दिन बाद बोले यार मूड नहीं कर रहा. तो जोश, पैशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कमर्शियल नॉलेज उसको, या जो भी काम करने जा रहा है उसके बारे में उसको थॉरो नॉलेज होना चाहिए. ही शुड नॉट बी, यू नो. एंड देन आइडियली आई वुड आल्सो लाइक टू लुक एट द पास्ट हिस्ट्री. पास्ट में उसने क्या गुल खिलाए हैं. अब एक एग्जांपल देता हूँ. यू नो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप इंस्टीट्यूशन के लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, हाँ, या बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं होता. फिर भी IIT, IIM, NIT या अच्छे इंस्टीट्यूट को क्यों लोग पैसे जल्दी दे देते हैं IIM वाले को? उनको लगता है कि इन्होंने पहले IIT के टाइम या IIM के टाइम या IAS क्लियर करते हुए इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बड़ी फाइट मारी है, बड़े ऊंचे नीचे देखे होंगे, हिम्मत नहीं हारी है इन्होंने. एक पहला ट्रेट उनको ये दिख जाता है कि ये फाइटर है. That is the only difference. Yes, Kapil, you are audible. Yes, sir. There was some technical issue that I missed. Yeah. Carry on. No problem. So I look at that. You know, passion है बंदे में फाइटिंग स्पिरिट कितना है, बंदे को क्लैरिटी कितनी है अपने स्टार्टअप के बारे में, और इसका इमेज या पास्ट या वो कैसा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट.
सर बट होता क्या है कि 90% जो हमारी स्टूडेंट की पॉपुलेशन वो तो ऑफ कोर्स टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस में, और टायर 1 कॉलेजेस में मतलब आईआईटीज एंड आईआईटीज में कुछ स्टार्टिंग के परसेंटेज के ही लोग हैं। तो ऐसे टाइम पे लाइक जैसे हम जैसे लोग हैं जो कि टायर 3 कॉलेज से हैं, बट वी हैव अ प्रोडक्ट और बहुत अच्छा, हमको लगता है हमने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, हम वैलिडेट भी कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बूटस्ट्रैप पे हैं। तो वैसे एंटरप्रेन्योर्स या वैसे यूथ्स को आप क्या सजेशन देंगे कि उन्हें नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाना है? मतलब क्योंकि इक्विटी भी काफी उस ऐसी चीज है जो कि उनको देखना होगा, कहीं भी उसको शेयर नहीं कर सकते, कहीं भी इन्वेस्ट किसी भी इन्वेस्टर को अप्रोच नहीं कर सकते। सो एक राइट मेंटरशिप भी बहुत जरूरी होती है जो कि टायर 3 कॉलेजेस में नहीं मिलती। तो सर उस टाइम पे कैसे सस्टेन करे और कैसे आगे बढ़े, ये बहुत बड़ा इश्यू है ऑफ कोर्स। बट देखो, अनदर गुड एग्जांपल आई विल गिव। अगर आप नेशनल लेवल टेनिस चैंपियन के साथ प्रैक्टिस चालू करो आज से, 2-3 महीने के अंदर आप ऐसा शॉट मारोगे कि वो भी परेशान हो जाएगा, बोलेगा यार ये तो मेरे बराबरी करने लग गया। फायदा होगा ना आपको? यस ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप आर्यन के साथ अभी चालू करी प्रैक्टिस आज आपने, ठीक है, और आर्यन डोंट माइंड, ये मजाक चल रहा है, तो आर्यन पहले ही टेनिस में माशाल्लाह है, तो आप दोनों प्रैक्टिस करते रहो, दोनों एक जितना ही चलोगे, और भूल जाओ नेशनल लेवल चैंपियन को आप कुछ फाइट दोगे। इंप्रूवमेंट किसकी होती है? जो वीक है उसकी जल्दी फास्ट होती है। तो पहले तो साथ का या अपना कंपटीटर या अपना बेंचमार्क, अपना मेंटोर अब से ऊपर का चुनो। जब उसके साथ आप चलोगे, सोचोगे ना, आपकी प्रगति फास्ट होगी। क्यों आर्यन, सही कह रहा हूँ? यस सर। सो रोल ऑफ मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे एक अभी मेरे को मैसेज आया, इससे पहले मेरी कॉल थी, तो चेन्नई का उसका बिजनेस बड़ी ग्रोथ फर्स्ट से जा रहा है एंड ही इज वांटिंग ग्रोथ कैपिटल। मैंने उसका एनालिसिस किया, मैंने उसको बोला कि तू कह रहा है कि मेरे को इतने पैसे और डाल दो तो मेरा बिजनेस यहाँ पहुंच जाएगा। तो मैं कहा तूने जो 2 ट्रक खरीदे हैं वो क्यों खरीदे? अगर तू ये 2 ट्रक में खरीद के पैसा नहीं फंसाता ना, तो तू हर महीने एक नया ट्रक खरीदने पे पहुंच जाएगा, और 6 महीने 7 महीने में जिस तरीके से तेरी ग्रोथ चल रही है। लेकिन तू अपना पैसा ट्रक में फंसा दिया क्योंकि तुझे लग रहा है मैंने एसेट क्रिएट कर लिया, मैंने ट्रक खरीद लिया बड़ी जल्दी बिजनेस में, अपने ट्रक खरीद लिए, एक ट्रक अपना खरीद लिया, एक लोन पे ले लिया, उसकी किस्त जा रही। तो मैं क्या, वो ट्रक के ओन करने के चक्कर में अपने बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक कर रहा है। ये चीजें ना जो मेंटोर सिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद पे झेली होती। मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे को भी ये था कि यार मैं अपना ऑफिस खरीद, मैंने फटाफट अपना ऑफिस खरीद लिया। बाद में वो वर्किंग कैपिटल वहां जब चली गई तो मेरे को मतलब कितनी मुश्किल हुई उसके बाद उसको चलाने में, काफी टाइम लगा मुझे। तो मेरी गलती थी कि मैं ऑफिस बनाता पहले कि मेरा अपना ऑफिस होगा। ठीक है यार, अपना ऑफिस होगा, बट अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसमें कैपिटल डालने से अगर आप फास्ट ग्रो कर रहे हो तो आप उससे बड़ा ऑफिस बनाने के काबिल हो जाओगे ना बड़ी जल्दी। बहुत जल्दबाजी अपना पैसा फंसाने में नहीं करना चाहिए। ये चीजें आपको मेंटोर सिखाते हैं। Yeah sir, like the way you mentioned the things, like मैं एक चीज समराइज करना चाहता हूँ यहाँ पर। Like you have discussed all the things, like I got like disconnected for some time. Like I mentioned that the way you things like mention कि अगर equity, for equity if I want to say something, like I meet with one of the great investor of India and he said that कि जो young entrepreneur है वो equity ज्यादा शेयर करना चाहते हैं कि यार अब 50 लाख दे दो, 50% ले लो। Like equity is the some things that you will have to take your in your hand. Like equity एक ऐसी चीज है जिसको आप फॉरवर्ड ले जाके और काम कर सकते हो। And the second things like you mentioned that for the like money is the some things. If you will talk about FedEx the company, like उनके जो entrepreneurs थे, I got forget his name, but उनके पास कुछ 25 या 26,000 डॉलर थे, वो कैसीनो में गए और फिर उन्होंने धीरे धीरे कंपनी के लिए खेला। वो जानते थे कि असली मनी की वैल्यू क्या है, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स, एंड नाउ द वैल्यूएशन ऑफ FedEx is like $100 billion. So it's depend on the individual, like how he tackles the problem, how he present to himself in the front of the investors or the entrepreneurs. Like sir, the way you said everything, like we have all the listen. So I would like forward to the people who have the question
from the Rupinder sir, so they can just unmute himself and raise the hand, and they can just ask the question. Sure, most welcome. Sure, बिल्कुल. So I will take it forward from here, sir. Like people are talking about entrepreneurship, like you mentioned everything. Sir, क्या हो रहा है कि लोग चीज ग्रैप नहीं कर पा रहे. The Vishal, the conversation with you is like totally tremendous. Like people understand what is the real meaning of entrepreneurship. That's why I conduct this event to get spread the knowledge about entrepreneurship. Like what is the basic fundamental of that thing. So, sir, I would like to ask from one question. Like, sir, how you started your bio house? Like, what was your vision? What was your vision that time? कि यार मैं अगर इस टाइम पे ये पहुंच गया, like विशाल asked the one question कि सर आप कैसे सोचते थे, आपको अब क्या फील होता. तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट फ्रॉम योर साइड कि सर आपको कैसा फील होता था यार कि मैं यहाँ पहुंच गया तो ये चीज करूंगा, और लाइक आप और इसको कैसे ग्रो करना चाहते हैं. आई वुड लाइक टू आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम. श्योर, गुड क्वेश्चन. सो पहले तो मेरे मन में ये था कि हम खास करके जो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स है वो सारी इंपोर्ट करते हैं. क्या मैं ऐसा करूं कि मैं अपने देश में उसको देश में ही प्रोड्यूस कर सकूं या देश में ही क्रिएट करूं, ताकि यहाँ के साइंटिस्ट को या यहाँ के जो लोग हैं उनको मैं बेटर वैल्यू पे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकूं. अगर वो बाहर से 100 रुपए में मंगवा के यूज कर रहे हैं, तो मैं उनको अगर 50 रुपए में दूंगा तो वो एक की जगह 2 यूज कर पाएंगे. तो उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट साइंटिस्ट के पास जाती है, डॉक्टर के पास जाती है. तो मेरे मन में ये था कि कब तक हम बाहर से इंपोर्ट करके अपनी जिंदगी चलाते रहेंगे. हमें खुद से प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें अपने देश को खुद काबिल बनाना चाहिए. जैसे कोविड आया, RT-PCR किट, हमारे पास एक भी कंपनी नहीं थी जो RT-PCR किट बनाती हो इंडिया में. आज 200 कंपनी है. तो जब मैंने शुरू किया तो मेरी भी यही सोच थी कि क्या मैं अपने कंट्री में रह के अपने ही कंट्री के लोगों के लिए यहाँ से प्रोडक्ट बनाऊं, बजाय इसके कि जो मल्टीनेशनल में मैं काम कर रहा था वो बाहर से लोग इंपोर्ट करते रहे, महंगी इंपोर्ट करते रहे, और बाहर वाले हमें और हमारी देश को लूटते रहे. दैट वाज माय थॉट प्रोसेस, व्हाई आई स्टार्टेड. सो सबसे पहले मेरे को जो लगा कि पहले मैं मार्केट में बेचना सीखूं, मैं मार्केट में घुसूं, मैं अपनी मार्केट में प्रेजेंस बनाऊं. तो हमने कुछ कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली और उससे हम मार्केट में आए, कस्टमरों को सामान बेचना शुरू किया, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने शुरू किए. और जब हमें बेचना आ गया तो साथ साथ में हमने फिर अपनी प्रोडक्ट्स बनानी शुरू कर दी. हमने अपनी R&D लगा दी, हमने अपनी प्रोडक्ट, अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस कर दिया, और we started having our own innovation, work, our own brand, our own manufacturing. बट मार्केट बहुत बड़ी है. फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो आज $60 बिलियन, $1 बिलियन करीब 7,500 करोड़ होता है. तो 60 बिलियन की मार्केट है बायोटेक की, जो कि कहते हैं कि $100 बिलियन को क्रॉस हो जाएगी 2025 में, अगले 3 सालों में. इतनी स्पीड से ग्रो कर दी. तो हमने तो अभी, मतलब मैं कहता हूँ कि एक पत्थर उछाला, हमें आगे जाना. और उस आगे जाने के लिए मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, वहां से आइडिया लेता हूँ, और मैं ऐसे अपने रास्ते के हमसफर भी ढूंढता हूँ कि जो इस जर्नी में आगे हमें ज्वाइन करें, कुछ ब्राइट लोग, सो दैट इज माय थॉट प्रोसेस. कि अभी कुछ हासिल किया छोटा मोटा. बस मुझे इस चीज की खुशी हो गई थी कि जब मैं जॉब में था, जब मैंने बिजनेस चालू किया, उसके बाद मैं अपना घर चला पा रहा था. स्टार्टिंग में मैं खुद सैलरी लेता था और साथ में अपनी टीम को सबको सैलरी देने लगा. स्टार्टिंग में जब 22-25 लोग हो गए तो मैं 22-25 लोगों को सैलरी देता था, उसके बाद मेरी सैलरी मैं लेता था. सो दैट गेव मी इमेंस सेटिस्फैक्शन एज एन एंटरप्रेन्योर. और वो जर्नी अब कंटिन्यू है. लेट्स सी कहाँ तक जाती है. और आगे आप लोगों ने, यंगस्टर्स ने संभालनी है. तो मैं तो ढूंढता रहता हूँ कि हमारे कोई अच्छा, बायोटेक में एक सबसे बड़ी बात जो हो रही है कि बायोटेक और IT सेक्टर का जो इंटरसेक्शन है, सबसे ज्यादा वैल्यू वहां क्रिएट होने वाली है.
क्योंकि हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है ना, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज सो कॉम्प्लेक्स। आपका बाहर इतना ट्रैफिक नहीं है जितना हमारे बॉडी एक सेल के अंदर होता है। कितने सेल है हमारी बॉडी में? एक सेल के अंदर बाहर जितना ट्रैफिक, उससे ज्यादा ट्रैफिक उसके अंदर है। एक भी चीज गलत चली जाए तो बीमारी हो जाती है। उसका डाटा कौन कैप्चर करेगा? अभी तो एक एप्पल की वॉच चाहिए और छोटा मोटा डाटा कैप्चर कर रहे हो। कल उठ के आपका सारा डाटा, आपकी जीनोम सीक्वेंस होगी, आपका डीएनए का डाटा, प्रोटीन का डाटा, खाने का डाटा, सोने का डाटा, सब आपके वॉच और सारे इंस्ट्रूमेंट कैप्चर करेंगे। उसके बेस पे आपको सारी प्रोडक्ट्स दी जाएंगी, उसके बेस पे आपको इलाज दिया जाएगा। तो बायोटेक और आईटी का तो अभी शुरुआत हुई है। इट विल अनफोल्ड मल्टीपल टाइम्स। सो देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स के लिए। बहुत अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में। Yes, sir, totally agree with you. Like, sir, the way you talk कि चीजों को और youngster को for yes, sir, we are ready to take forward it in the startup field, and we will do. And I am giving my 100% to attract with the people. Like, sir, I will share my something from my own. Like, I just clear IIT JEE in 2021, and due to some reasons I did not join the IIT. And like I take it the BSc CS college in private college, and I was thinking that यार मैं क्या करूँगा? But I get like I know about the LinkedIn, and when I connected with the people, so now this is the time. Like I have connected approx 100 plus founders. Like मैं एक समय सोचता था कि यार किसी से बात हो जाए, to whom I talked one to one. Like so great founders of India I have talked to and interacting to bring out in my events. Like I have conducted 7 events with the lot of founder like Udit Goenka, the man who has started from bootstrap and now $20 million. So like एक बात तो ये है कि इफ यू स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट कहीं से भी हो, एंड आपका अच्छा ही होना चाहिए सर। लाइक द वे यू मेंशन कि आपने सोचा कि एक मैं डॉक्टर के बेचा हूं, लेकिन आपने अलग लाइन निकाली और नाउ यू हियर। आपकी सोच के कारण आपकी मेंटल हेल्थ कैसी होती है, आपका विजन क्या है, उसके थ्रू आपको समझ में आता है कि हाँ यार हम ये चीजें कर सकते हैं। तो सर हम इसी के थ्रू जाते हुए आपके साथ और क्वेश्चन करूंगा मैं। सर जैसे आप देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप वर्ड इंडिया में बहुत ज्यादा धीरे धीरे लाइक स्प्रेड हो रहा है। लाइक डे डे लाइक पीपल आर वाचिंग द शार्क टैंक इंडिया और नाउ मेकिंग पिच डेक एमवीपी आई मेंशन्ड अर्लियर। सर आपको क्या लगता है इन द अपकमिंग years, like people are showing that in 2025 we will touch the 5 trillion economy. So what's your thought? Like you posted a LinkedIn post where I also watched that कि आपने मेंशन किया कि हाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टच कर सकते हैं। सो व्हाट्स योर थॉट एंड कि क्या हम टच कर सकते हैं? व्हाट्स योर लाइक सम ऑफ द एडवाइस टू गिव यू द यंग एंटरप्रेन्योर? तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो क्लियर एडवाइस है कि हमारे पास 1.37 बिलियन लोग हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ी मार्केट है। सबको मेडिसिन चाहिए, सबको डायग्नोस्टिक चाहिए, सबको न्यूट्रिशन चाहिए, सबको फूड चाहिए। तो फूड चाहिए होगा तो स्विगी भी आएगा, सब आएगा, जोमेटो आएगा। पैसा चाहिए, पेटीएम चाहिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन चाहिए। मतलब इतनी बड़ी मार्केट है। तो 5 ट्रिलियन क्या, आई थिंक वी कैन गो बियॉन्ड दैट। दैट इज वन। सेकेंड, सो इसमें जो जैसे मैंने बोला कि जो शार्प थॉट प्रोसेस वाले हैं ना, कि मैं इस स्पेस में मेरे को इंटरेस्ट है और इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और इसको मैं सॉल्व करूंगा और इसके मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा, जो उस चीज पे क्लैरिटी जिनको आती जा रही है, दे विल डू वेरी वेल। अब जो बिना लगाम के घूम रहे हैं, जिनके दिमाग का कोई आइडिया नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो मेरे कई सारे वीडियो में मैंने बोला भी, वो पहले 30-32 साल तक तो वो दे आर लॉस्ट। यू नो, कोई इंस्टाग्राम पे लॉस्ट है, कोई लड़कियों के पीछे लॉस्ट है, कोई लड़कों के पीछे लॉस्ट है, लड़कियां कोई कहीं लॉस्ट है। 30-32 तक तो वो लॉस्ट रहते हैं। सडनली फिर शादी हो जाती है, थोड़ी सी कोई छोटी मोटी जॉब लगेगी, शादी हो जाएगी, फिर जिम्मेवारियां सिर पे पड़ जाएगी। तो उनके तो सिर पे पड़ती ही रहनी। बट दोज हु आर वेरी क्लियर, दोज हु आर सेविंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। एक और भी थॉट प्रोसेस होता है कि यार सेव करने के लिए लाइफ पड़ी है, नहीं, दैट इज वन एटीट्यूड। आप मनी की वैल्यू वहां समझो कि अगर आपके पास किराए में 5 रुपए या 10 रुपए कम हो ना, तो आपको बस वाला रोक के बस से नीचे उतार देता है। वहां आपको 10 रुपए की 20 रुपए की वैल्यू पता चलती है। ऐसे हम ऐसे फेंक देते हैं।
और सारे लोग हम कमाते हैं बट हम गवाते ज्यादा है, कमाते कम है गवाते ज्यादा. So understand the value of money, start saving and put things behind your idea and then create value. ऐसा नहीं कि वहां भी आप उसको बर्न कर. तो अगर ऐसी सोच वाले लोग जो है ना वो सक्सेसफुल होने वाले हैं, उनमें अभी से ट्रेड दिख रहे हैं, वो दे आर गोइंग आउट ऑफ द वे. कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, साथ में पढ़ाई कर रहा है, साथ में स्टार्टअप की थॉट प्रोसेस भी लगाया हुआ है. You know, so they are different people and they will be successful, I'm sure. So करने वालों के लिए कोई कमी नहीं है, ना करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, वो तो कोसते रहे. Yeah, so I would like to some. Yes, sir. I would like to some. लेकिन जो तैयार है वो कम फेल होगा. Yeah. Yes, sir. Totally agree. Please go ahead. Yes, sir. I would like to summarize here like the 5 things you mentioned from your side. Ki firstly, clear your vision for the fundamental of a startup. Second, that you should find the best team that you can mention in the front of the investors. And secondly, sir, like one of the best thing you mentioned in your conversation with Vishal, that marketing is the best thing. If you are the founder, you will have to understand. If you can sell the things, you can do anything. 4 things that you will have to prepare for all the things. Like if you are starting your startup, you are failing from day one. Like आपका कुछ भी हो सकता है. And 5 things like set your mindset that how to connect with the people. The 5 things that I learned today's section with you. So like sir, we go through with the great session with you. Sir, like what do you want to say more about like event.org? Like is a startup I started in February 6th and I was thinking that यार मैं कैसे connect कर पाऊंगा लोगों से. Now I connected with Aryan, Vishal. Like I said like Vishal, you hosted this session and he did very well and connected with the more people. Sir, what do you want to say something for to all these guys? Like हमको आप क्या कहना चाहते कि हम और क्या कर सकते हैं इसके थ्रू? So we would like to ask that from your side. So first of all, I would say, congratulations. You have taken the first step forward already. एक टारगेट बेस्ड अप्रोच रखो. जैसे मैंने आपको सुबह टारगेट दिया था कि इतने सब्सक्राइबर ऐड करते हैं, तो वो अपने ऐड नहीं हुए. सो हैव अ टारगेट बेस्ड अप्रोच इवन इन योर वर्क. आपका टारगेट. Sorry for that things, but I was busy on that things. I will perfectly do it like in 1 and 2 hour we will do approx the way we can. We will try our best and we will add that. नहीं तो वो तो आपने करना ही है बिकॉज हम कोलैबोरेट कर रहे हैं और वी आर वर्किंग टुगेदर एज वन टीम. Yeah. We will do. वो तो एक चीज है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो तो आप करोगे आई नो अब. लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग इज जो मैं कहना चाह रहा था कि गोल ओरिएंटेड अप्रोच. सो मैंने वो आपको जानबूझ के दिया था, वो जस्ट सिखाने के लिए. आप समझो, मैं आपको सिखाने के लिए वो दिया था कि मैं आपको एक गोल दिया है. अब जैसे मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, सो आई एम स्पेंडिंग 1 hour, राइट. सो इन द प्रोसेस में आपको ये सिखा रहा हूँ कि मैं भी आपसे कुछ मांग रहा हूँ वापस. ये मेरा आपसे सिखाने का तरीका था कपिल, और मुझे पता है आप पूरा करोगे. आपका यार दोस्त है, और अगर आप 20 सब्सक्राइबर नहीं ढूंढ के इकट्ठे कर सकते हैं ना अपने होस्ट के लिए, तो फिर मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि यार कपिल ना गोल ओरिएंटेड होना चाहिए. सो एग्जाम्पल विच आई एम ट्राइंग टू गिव यू, आपके लिए अब आप अपने स्टार्टअप में बी गोल ओरिएंटेड, हैव माइलस्टोन्स. आपने पहला स्टेप ले लिया, आपने एक टीम बना ली, सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो. मेरी एडवाइस होगी कि जम के कोलैबोरेट करो, जम के हेल्प करो. लोग क्या करते हैं कि हेल्प कम करते हैं, कंपीट या क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं. उसमें क्या है कि वो क्रैब मेंटालिटी होती, सारे अपने एक दूसरे को नीचे खींचते हैं. लेकिन आप आगे आओ और एक दूसरे को जम के सपोर्ट करो, जम के एक्सपेंड करो उसको. सो दैट विल बी माय एडवाइस टू यू. यू हैव Yes, sir. Like yeah. आपने अपना पहला स्टेप शुरू कर दिया. सेकंड, अब अपनी गोल ओरिएंटेड
Hello. Can you hear Yes, me? sir, your voice. Yeah. Sorry, sir. Yeah, there was some issue. Yeah, you can say. No problem. So मैं आपको यही सिखा रहा था. So have goal oriented approach for your startup now. You know कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, अपना बैठ के पूरा कैलेंडर बनाओ. तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, no problem. But you will have a goal oriented approach. Then you should also review your goals. कि भाई आपने ये गोल सेट किया तो आप 3-4 लोगों की टीम जो भी बनी है या और लोगों की है, तो आप फिर पीरियोडिकली उसको रिव्यू करोगे, क्या हम सही जा रहे हैं, हमारे गोल ये थे, हम यहाँ हैं यार, क्या करना चाहिए. तो यही छोटी छोटी चीजें हैं. आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल. आई अप्रिशिएट कि आपने फर्स्ट इनिशिएटिव्स ले लिए. Yes, sir. Basically, the thing is that sorry for that. I did not complete your goal. Sorry from my heart, and sorry for that. And we will complete. अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार. वो मैं आपको नहीं I understand like the way you want to say कि आप goal oriented रहिए और उस चीज को करिए. Like basically, yeah, I understand, sir. And basically, the thing is that I got it from your side that कि if your vision is your clear, like आप सोच रहे हैं कि अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं. Basically, sir, the thing is that I gone through very good things. Like I am connecting with lots of people. Like people are not getting the chance to connect with them. But I like मैंने सोचा कि यार एक बार अप्रोच करने में क्या जाता है. But I bring out to them. Yeah, I bring out to them like lots of founder. Nowadays I mentioned that I am connected with approx India's biggest, like one of the best YouTuber like Ankur Warikoo, Anupam Mittal. All these guys I have personally connected with them. And yeah, in upcoming days we will bring also to them in our shows. The best thing that I learned from your side, that your vision is clear, totally clear. And the way you said from your childhood and you started the things and continuously you do, and in upcoming days you also see some best thing from your side. And at last, sir, now at 6 p.m. So I would like to say the thank to you and thank you everyone for joining the session. And yes, sir, it will uploaded on the YouTube, and I will give to you in the Google Drive or whatever we will do. And the best things in our session, that hope everybody enjoy the session, and the people approx 40 people join us, comes and goes. But the thing is that we are building our community, and we are just our 19-year guys, and we are like giving our 100%. And Excellent. to all the and giving to all the spread awareness to all the people. Like our main motto is that कि अगर कोई बच्चा IIT या IIM या गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं गया है तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि यार हमको नॉलेज नहीं मिलना चाहिए. Our base, like sir, lots of startup are doing the events in that, but the biggest good thing in our startups that we connect one-to-one people. Like a Vishal is like from tier private college, but today he got the chance to interact one-to-one with you. So basically the thing is that we do not want कि यार अगर कोई बच्चा उसके पास कुछ resources कम है तो वो नहीं कर सकता है. Internet is something that you can do each and everything best from your side. Like we have seen your video, the way you mentioned. So thank you, sir. Thanks a lot for coming in my event.org from my hearts. And last word, if you want to say something, it will be great for us. Thank you, sir. So thank you, Kapil. Thank you very much. And I'm open. I am approachable. So you can contact me. Vishal, you can contact me. Kapil, Aryan, Vinay, Bantu, who all are I can see on the screen. You're most welcome. You can call me. You can leave a message. And I really appreciate and wish you all the very best. Thank you so much. Thank you so much for your time, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thanks a lot for coming in my event. And it's my honor that I connected to you. And I just called one time and you said you are coming. So that's the very good sign. If any entrepreneur would like to say यार कि मैं आ रहा हूँ, मैं support करने के लिए तैयार हूँ, तो ऐसे entrepreneur की ही हमको जरूरत है जो looking forward to connect with the people. So thank you, Rupinder Singh. Pleasure. Thank you, Rupinder sir. My pleasure. Thanks a lot to coming in my word. Yes, sir. Thank you. Thanks a lot. Have a great day ahead for you, all of you. Yeah, Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, thanks a lot.